اور آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم دونوں موجود ہیں اور انالیسس دینے جا رہے ہیں لاہور اسکائی مال کے حوالے سے پروجیکٹ بائی او زی ڈیولپر. تو اس ایجنڈے کو نیوٹرل انالیسس کی بیس کے اوپر ہم دونوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. السلام علیکم جی, دس از می رضوان کبھی خان اینڈ یو آر واچنگ کنسلٹ ڈیسائیڈ اینڈ بائی پراپرٹیز یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں علی میر اور آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم دونوں موجود ہیں اور انالیسس دینے جا رہے ہیں لاہور اسکائی مال کے حوالے سے پروجیکٹ بائی او زی ڈیولپر. سو علی میر کیا کہنا چاہیں گے, تھوڑا سا آپ بتائیے گا. دیکھیں جی, جہاں پر او زی ڈیولپرس کا نام آتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے جو چیز ہمارے مائنڈ میں کلک کرتی ہے وہ ہے کمٹمنٹ کا پورا ہونا. بالکل. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈیولپرس اپنی کمٹمنٹس کو آن ٹائم فلفل کرتے ہیں اور اپنا پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے اس کے لیے پری ورکنگ جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہماری اس ویڈیو کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ لاہور اسکائی جو اس وقت لانچ ہو چکا ہوا ہے اس میں کمرشل یونٹ یا پھر آفیسز کے اندر انویسٹمنٹ کی جانی چاہیے یا پھر کوئی رسک فیکٹر انوالو ہے یا پھر ریٹرنز انوالو ہیں. تو اس ایجنڈے کو نیوٹرل انالیسس کی بیس کے اوپر ہم دونوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. کبھی بھائی لاہور اسکائی کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. لاہور سٹی کے اندر لاہور رنگ روڈ سے آپ گجومتا انٹرچینج پہ, مطلب جہاں پر آپ کو ایل ڈی اے سٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ملتا ہے, وہاں سے آپ قصور کی طرف ٹورڈز اگر آپ 2 سے 4 منٹ کی ڈرائیو کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو لاہور اسکائی کی لوکیشن ملتی ہے. اور فیوچر میں میٹرو اسٹیشن کا جو پورا ایک ٹریک ہے وہ آپ کو قصور تک جو ہے وہ 100% اپروو ہو چکا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا. آپ کو قصور ٹو ساہیوال جو موٹر وے ہے وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. تو یہ بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں جو سوسائٹیز ہیں وہ بڑی نامور سوسائٹیز ہیں. ڈی ایچ اے جیسی سوسائٹی ہے, 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آپ کو گلبرگ مل رہا ہے, 25 سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر آپ کو لاہور ایئرپورٹ مل رہا ہے. تو یہ وہ سارے سینٹرل پوائنٹس ہیں جہاں پر لوگوں کا ریگولر بیسس پہ آنا جانا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ سینٹرل پارک ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے, وہاں پر میکڈونلڈ کا آ جانا لوگوں کے لیے ایک بڑی اٹریکشن ہے. تو ایک بہترین اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر یہ پروجیکٹ 100% ایل ڈی اے اپرووڈ اور 73 کنال کی پہلی پاکستان کی ورٹیکل گیٹڈ کمیونٹی جس میں ٹوٹل 6 ٹاورز ہیں. بالکل. تو اگر پری ورکنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈیولپرز نے یہاں پر ایل ڈی اے اپروول کروائی, تمام نجی اور سرکاری اداروں سے ہر طرح کے اپنے این او سیز کلیئر کروانے کے بعد آج وہاں پہ مشینری ڈپلائڈ ہے اور ایکسکیویشن کا کام چل رہا ہے. اچھا یہ علی میر, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, کسی بھی ڈیولپر کے لیے نا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل پری ورکنگ کر لینا. بالکل ٹھیک ہے. او زی ڈیولپر کی یہ خاصیت رہی کہ انہوں نے پری ورکنگ جو کی ہے نا وہ پہلے, اب ہم ورکنگ سے ریلیٹڈ بات نہیں کریں گے, ابھی ہم ایکسکیویشن کی بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں لوکیشن کی. جب کسی بڑے برانڈ کے اندر کوئی پروجیکٹ آتا ہے نا تو لوگوں کا مائنڈ بنتا ہے یار اس برانڈ کا نام لگ گیا نا تو ڈیولپر اچھے ہوں گے. بالکل obviously بات ہے. ٹھیک ہے, لائک ڈی ایچ اے کا نام لگ جائے, بحریہ کا نام لگ جائے, تو ہماری ایک سائیکی ہے کہ ہمارے ساتھ جیسی برانڈ کا نام لگتا ہے تو ہم اس کی طرف بھاگ چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ابھی ہم بات کریں گے فیروزپور روڈ کی. ہم نے فیروزپور روڈ کو اس طرح سے ایکسپلور ہی نہیں کیا. بالکل ایسے جتنا آپ نے ہمارے ویورز کو بتایا ہے نا کہ بھائی جان یہ آنے والے وقت میں ہونے والا ہے, اگر تھوڑا سا یہ ویژوالائز کر لینا لوکیشن کو لے کے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیں, وہ دیکھنا شروع کر دیں میٹرو بس کی ایکسپینشن, وہ دیکھنا شروع کر دیں موٹر وے کی ایکسپینشن اور لاہور ساہیوال کا کنیکٹیوٹی آپ کی سیالکوٹ والی سائڈ سے ہونا, ٹورڈز راولپنڈی جانا, اسلام آباد جانا, وہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ جو سوسائٹیز کے ہب میں ورٹیکل کمیونٹی گھری ہوئی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وہاں پاپولیشن کتنی ہے, وہاں پر کمرشل پلاٹس کی کیا پرائسز ہیں, وہاں ایکڑوں میں زمین کی کیا پرائس ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہمارے ویورز دیکھیں گے نا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کیا پری ورکنگ رہی لوکیشن کو لے کے. دیکھیں یہ تو لوکیشن کی ہم نے بات کی ہے کہ بڑی اسٹریٹجک ہے اور جتنی چیزیں آپ نے ایڈ آن کی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو ضرور ویژوالائز کرنا چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پری ورکنگ کے بعد جو ڈیولپرز کے نیکسٹ اسٹیپ ہیں سکسیس کی طرف. دیکھیں ہم سکسیس کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا پاسٹ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے اور تمام کلائنٹس نے اس کو وٹنس بھی کر لیا, ایکسپیرینس بھی کر لیا. بحریہ اسکائی مال اینڈ ریزیڈنسی سے ہر بندہ جو ہے وہ باخبر ہے. میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستان نہیں بلکہ اوورسیز کلائنٹ بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہیں کیونکہ ایک ایسا سنگل کلائنٹ نہیں ہے جس نے ہمیں یہ کہا ہو کہ آپ نے ہماری انویسٹمنٹ کہاں کروا دی ہے, کیونکہ ان کو کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نظر کیسے آ رہی ہے؟ نظر بھی آ رہی ہے اور کوئی وہاں جاتا نہیں تھا. بالکل ایسے آپ دیکھیں بحریہ آرچرڈ کے فیس 4 کا کسی کو پتا تھا؟ آج جب سے کمرشل ہب بننا شروع ہوا لوگوں کو پتا لگا رائیون روڈ کی اہمیت کا, تو کون سا بندہ ایسا ہے جس نے وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کی؟ ہر بندے نے کی ہوئی ہے. اور وہاں پہ سی سی ٹی وی انسٹال ہونا, کنسٹرکشن کا اتنا سپیڈی چلنا, یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. تو میں یہ بات کروں گا کہ اب نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپرز کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. دیکھیں
डेवलपर्स जो है वो बिल्डिंग्स बना देते हैं और बिल्डिंग बनाने के बाद अगर वहाँ पे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है या फिर डेवलपर की अप्रोच टुवर्ड्स ब्रांड्स नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि वो वैकेंट रह सकती है या फिर उस तरह का प्रॉफिट नहीं आपको मिला। लेकिन यहाँ पर ओजी डेवलपर्स ने वो कर दिखाया जो लोग चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे, और वो लोग जो स्पेसिफिकली हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचते हैं। देखें, आप साइट लोकेशन पे जाएं, वहां पे विक्टोरियाज कैफे जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वहां पे उन्होंने लाहौर स्काई का एक रेप्लिका रेडी करके उसको ऑपरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया, मशीनरी डिप्लॉयड है, 100% एलडीए अप्रूवल है, 73 कनाल की वर्टिकल गेटेड कम्युनिटी है, लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है बिजनेस का वो डीएफओ है। और अली मैं आपको यहाँ रखूंगा जी व्यूअर्स, ये सारा हम प्री वर्कआउट की बात कर रहे हैं कि जिसमें हमने लोकेशन का भी जिक्र किया, जिसमें हमने उस वर्टिकल कम्युनिटी का जिक्र किया, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ब्रांड्स को एंगेज कैसे करना है। अभी एक और भी चीज अली मीर ऐड कर लेंगे क्योंकि अली मीर बड़ी तेजी से उस तरफ भी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो अली मीर वो भी आप ऐड कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए ये है कि भाई जिन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया वो कहां पर अपने आप को सिक्योर देखते हैं और हमारा एनालिसिस क्या कह रहा है कि क्यों हम आपके ये रिस्क फैक्टर को हम आपके कम करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे देखें, प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई भी दुनिया का ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, बल्कि होना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क नहीं है तो वो फिर कारोबार नहीं है। और प्रॉपर्टी के अंदर अप एंड डाउन चलता रहते हैं, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाए तो मेरा ख्याल है कि आपको वो ऑप्शन जरूर ऑप्ट करनी चाहिए। डेवलपर की अप्रोच के हवाले से मैं रिजवान भी बताना चाह रहा था कि डेवलपर की टुवर्ड्स ब्रांड अप्रोच क्या है। अनेबलर ग्रुप ऑफ कंपनीज, साकिब अजहर साहब, पूरा पाकिस्तान उनसे वाकिफ है और जानते हैं कि वो बहुत बड़ी आईटी कंपनी को रन कर रहे हैं और लाखों लोगों को अपने स्कूल एंड एकेडमीज के अंदर वो ट्रेन कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड, बिकॉज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो आईटी की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और आईटी के अंदर अपना नाम बनाएं। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी और लाहौर स्काई का सेकंड ब्लॉक, जिसके अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफर किए हैं सिर्फ 15,000 पर स्क्वायर फीट रेट के साथ, 48 महीने का पेमेंट प्लान, 20% डाउन पेमेंट, वहां पर साकिब अजहर साहब के साथ ओजी डेवलपर्स का एमओयू साइन हो चुका हुआ है। और उसके लिए उसकी जो सेरेमनी थी वो भी बाखूबी और बड़े शोरों जोर से मनाई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि देखें अब आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो रेंट आउट लाजमी होगी 4 साल के बाद। ये साकिब अजहर साहब के माउथ वर्ड्स हैं कि एज सुन एज कंप्लीशन ऑफ लाहौर स्काई इंशाल्लाह हम यहाँ पर आ रहे हैं और लाखों स्क्वायर फीट जो है ना वो एक्वायर करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी समझे आज से रेंट आउट है। उसके बाद इसमें एक चीज और बड़ी ऐड करना लाजमी है अली, बिल्कुल आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। उसमें ये है व्यूअर्स के देखें, जब जैसे मैंने अपने स्टार्ट में कहा था कि आप लोग ब्रांड के साथ एंगेज होना चाहते हैं, जब आप लोगों को इस चीज का इल्म हो गया कि जी एमओयू साइन हो चुका है इनेबलर्स के साथ, जब आपको इस चीज का इल्म हो गया कि साकिब अजहर साहब का एक बड़ा नाम है, जाना माना नाम है, वो उस फ्लोर के साथ बिल्कुल इन टच रहेंगे, बिल्कुल। तो आप ये सोचें कि आप वहां पर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बाय करते हैं तो आप पहले दिन से ब्रांड के साथ एंगेज हैं, ब्रांड के साथ जिनकी एक अपना फुटफॉल रहेगा वहां पर। सो आपको ये चीज की दिक्कत नहीं होनी कि भाई हमने वहां ऑफिस लेना है तो वहां कौन से ऐसा ब्रांड है जो पहले दिन से आ रहा है। बिल्कुल तो डे फर्स्ट से पता है, डे फर्स्ट से पता। और क्या नाम लेते हैं, इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग की जा रही है। लाहौर की किसी भी बड़ी लोकेशन के ऊपर आप चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, एयरपोर्ट चले जाएं, आप बड़ी बड़ी शाहराहों से गुजरें, लाहौर स्काई की ब्रांडिंग हो रही है बाकायदा। बता रहे हैं लोगों को कि आपके पास ये मौका है, आप अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। देखें डेवलपर के लिए 2 साल में प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को डबल कर देते हैं, लेबर डबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 4 साल का पेमेंट प्लान रखा गया है दुबई से और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आर्किटेक्चरल जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाने का मकसद ये है कि भाई जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमने आपको डिलीवर भी करना है। और उसका हम एक छोटी सी जो एग्जांपल है, विटनेस है, वो हम कर चुके हैं लाहौर स्काई का रेप्लिका विक्टोरियाज कॉफी के नाम से। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डीएफओ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। देखें डीएफओ को समझना पड़ेगा। आप इमेजिन कर लें, विजुअलाइज कर लें कि आपने एक कमर्शियल यूनिट बाय किया और कमर्शियल यूनिट बाय करने के बाद आपकी वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है लिवाइस। तो आया लिवाइस जो है वो 2 या 4 महीने के लिए आपके पास आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
जब आप किसी ब्रांड को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं तो आपका जो रेंटल एग्रीमेंट होता है वो 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सिक्योर है, आपकी रेंटल वैल्यूज भी सिक्योर हैं। देखिए हम रेंटल वैल्यूज की बार बार बात इसलिए करते हैं कि 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर जब आप कमर्शियल बाय कर रहे हैं तो कमर्शियल ने अल्टीमेट रेंट आउट ही होना है। ऐसे ही, और ये देखो ना, सिर्फ ये चीज नहीं मैटर कर रही होती कि अगर हम किसी बड़े ब्रांड का नाम लेंगे, और बड़े ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि हम लिवाइस का नाम लें, खाड़ी का नाम लें, यूनिवर्थ का शर्ट एंड टाई, डाइनर्स का नाम लें, हमारे पास मल्टीपल ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनको हम कहते हैं लोकल, लेकिन वो लोकल एज सच नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमें वो भी आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो या आप उनको दे सकते हो, और आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनकी जो आप ओजी डेवलपर की बात करोगे ना, उनका जो विजन है वो बहुत क्लियर है। एग्जैक्टली देखें रिजवान भाई, लोकल ब्रांड्स को प्रमोट किया जाता है और लोकल ब्रांड्स को भी पता है कि हम मॉल में अपना आउटलेट ओपन करने लगे हैं तो हमने मॉल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। लाहौर स्काई, बहरिया स्काई, ये वो 2 ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके डेवलपर्स ना सिर्फ एक्सपर्टीज रखते हैं बल्कि उनकी ब्रांड्स की तरफ अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि 48 महीने के पेमेंट प्लान के अंदर आपको हर मोमेंट के ऊपर कमिटमेंट मिल रही है, कंस्ट्रक्शन मिल रही है, डिलीवरी मिल रही है। तो ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इनको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको राइट कंसल्टेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। हम अपने एंड पे वर्किंग कर रहे हैं, आप अपने एंड पे वर्किंग करें, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। 24/7 हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, हम कॉल पे अवेलेबल हैं, ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट, कनाडा, यूएसए, किसी भी कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में एक अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट में, आप अपने फंड्स लगाना चाह रहे हैं जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके पॉकेट बजट के मुताबिक, आप फूड कोर्ट के अंदर बाइंग कर सकते हैं, डीएफओ में बाइंग कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बाय कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर नहीं है, रिटर्न ही रिटर्न है, क्योंकि अभी तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, और रिटर्न इन शेप ऑफ सिर्फ कैपिटल ग्रोथ नहीं है, रिटर्न इन शेप ऑफ रेंटल इनकम नहीं है, कमिटमेंट्स हैं जो आप उनसे ले रहे हो। इसके अलावा ये चीज भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हमसे कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स मौजूद हैं और हम डेवलपर भी हमें बड़े अच्छे लगे और हम इन्हीं के प्रोजेक्ट के इंतखाब करना चाहते हैं और हम बहरिया की तरफ थोड़ा रुझान रखते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहरिया जैसे ब्रांड के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 पे जहां पर सबसे बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है, सेम डेवलपर का प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लाहौर स्काई में आपका बजट मीट नहीं करता किसी भी यूनिट को, तो आप बहरिया स्काई के अंदर बाइंग कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको वहां पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें ये चीज़ें अगेन मैं आपको कहूँगा कि आपको विजुलाइज करनी पड़ेंगी। रिजवान भाई बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। नॉर्मली हमें इस तरह की डील्स नहीं मिल रही होती हैं, तो उसके लिए सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आप हिट कर दें ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें और हम इसी तरह से आपके साथ न्यूट्रल एनालिसिस शेयर करते रहेंगे और मिनिमम रिस्क फैक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मिनिमम रिस्क हमने बात की, तो हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स, हमारे चाहने वाले, हमारे देखने वाले ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम के अंदर कुछ चीजों को मिसजज कर लिया, या ये कह लें कि उन्होंने ये समझा कि अगर हम वहां पर बहुत ज्यादा फाइल्स बाय कर लेंगे तो हम उन फाइल्स से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, लेकिन समहाउ ड्यू टू सिचुएशन और कुछ कंडीशंस को देखते हुए वो ऐसा नहीं गेन कर सके और उनको उससे रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए है, तो वो हमसे बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। हम उनको एक अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर मशवरा देंगे। जो पहले उनको फायदा नहीं हुआ या आज की डेट में वो समझते हैं फायदा नहीं हो रहा, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो अली मीर भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूँ, हमारी टीम पूरी हाजिर है आप लोग। बिल्कुल, आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 व्हाट्सएप पे, कॉल पे हम अवेलेबल हैं आपके लिए, प्योरली आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और रिजवान कबीर खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।